Good morning, dear students. Kindly get ready for today's assembly. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Get ready for the pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Chapter 24. Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them, for their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief. Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. A wise man is strong, yea, a man of knowledge increaseth strength, for by Get ready for personal prayer. Join your hands and close your eyes. Dear God, use my eyes to see new friends. Open my ears to listen to my teacher. Open my mind to learn new things. Let my heart remember you are always near when I am afraid. Help me to love others like you do. I want to shine your light so bright in my school. Amen. Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Today's day and date. Today's date is 24th of January 2022, and today's day is Monday. Today's thought for the day. Your future is created by what you do today, not tomorrow. I repeat today's thought. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Today's significance. January 24th is celebrated as National Girl Child in India every year. Today's news. Maharashtra government to take decision soon on college reopening, says Uday Samant. 64% Maharashtra parents don't want to send children to school. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को एक प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस और उनकी पत्नी प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवादी स्वभाव पहली बार कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सामने आया, जब भारत विरोधी बातें करने वाले प्रोफेसर ओटेन पर हमला करने के लिए उनको उकसाया गया।
1930 के मध्य दशक के दौरान बोस ने यूरोप की यात्रा की, जहां उन्होंने मुसोलिनी सहित अन्य भारतीय छात्र और यूरोपीय राजनेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी संगठन को बनते देखा और साम्यवाद और फासीवाद को सामने से देखा। 1938 में वह राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए थे और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामांकन स्वीकार कर चुके थे। वह स्वराज के पक्ष में थे, लेकिन इसका मतलब गांधी के खिलाफ जाना था, जिसकी वजह से उनके और नेहरू के बीच दरार पैदा हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस से राय लिए बिना ही भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। इस फैसले के विरोध में चले सिविल डिसोबीडियंस के अभियान में बोस शामिल रहे। कलकत्ता में बोस ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। डलहौजी स्क्वायर में कोने पर खड़े होलवेल स्मारक को हटाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। बोस को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनकी 7 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद सीआईडी ने कलकत्ता में बोस के घर पर नजर रखी। बोस ने अपने भतीजे सिसिर के बोस की मदद से भागने की योजना बनाई। रातों रात दाढ़ी बढ़ाकर पठान के हुलिये में एक कार में निकल गए। बोस अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी निकल गए। बोस ने हिटलर से कहा, मैं ईश्वर की कसम खाते हुए ये पवित्र शपथ लेता हूं कि मैं भारत की लड़ाई में इसके नेता के रूप में जर्मन बलों के कमांडर, जर्मन नस्ल और राज्य के नेता एडोल्फ हिटलर का पालन करूंगा। लेकिन जब जर्मन सेना पीछे हट रही थी तो सारा खेल बिगड़ गया। अब जर्मनी अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत की मदद करने की स्थिति में नहीं रही। इसीलिए 1943 में बोस अपनी सेना से छुपकर एक पनडुब्बी में जापान के लिए चुपके से निकल गए। उन्होंने पनडुब्बी U-180 पर केप ऑफ गुड होप तक और फिर जापानी पनडुब्बी I-29 के माध्यम से जापान की यात्रा की। यह द्वितीय विश्व युद्ध में एक ऐसा अकेला मामला था जहां 2 अलग अलग नौसेनाओं की 2 पनडुब्बियों के बीच एक नागरिक यानी कि सिविलियन को ट्रांसफर किया गया। 1943 में बोस की मदद से सुदूर पूर्वी भारत में एक मुक्ति सेना का विचार होने लगा। बोस ने भारतीय राष्ट्र सेना पर नियंत्रण कर लिया और बिखरी हुई सेना का फिर से निर्माण करने लगे। दक्षिण पूर्व एशियाई के प्रवासी भारतीयों ने बड़े पैमाने पर उनका समर्थन किया। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीयों की रैली में भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक महान भाषण में बोस का सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें उन्होंने भारत के लोगों से ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। आईएनए का पहला लक्ष्य मणिपुर के पूर्वी भारतीय सीमाओं के प्रति जापानी जोर में था। आईएनए और जापान ने 1942 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी कब्जा कर लिया। ये कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई थी, जिसका भारतीय राष्ट्र सेना पर बहुत प्रभाव पड़ा। जापानी अब सेनाओं को धन नहीं दे सकते थे और अंत में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जापानी मदद के बिना आईएनए का ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं था और इसीलिए उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। बोस का लापता होना और उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। हालांकि ये कहा जाता है कि वो 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते वक्त ताइवान के तेपई में एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। इंपीरियल जापानी एयरफोर्स बॉम्बर जिस पर वो यात्रा कर रहे थे, उसके इंजन में परेशानी थी और क्रैश में बोस बुरी तरह से जल गए थे। उसके कुछ घंटों बाद ही एक स्थानीय अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। Today's instructions are as follows. शुभ सकाळ. आज दिनांक 24/1/2022 सोमवार
आजसाठी सूचना. पहिली सूचना. प्रिय विद्यार्थ्यांनो, देवाच्या कृपेने आपण नवीन आठवड्यात आलो आहोत. आज नवीन दिवस, अभ्यासाचा 33वा आठवडा. परमेश्वराची स्तुती करण्यासाठी ही चांगली जागा नाही का? कृतज्ञतापूर्वक प्रार्थना करून त्याचे आभार माना. आजचा दिवस तुमच्या अभ्यासात आनंददायी आहे. सूचना क्रमांक 2 अ. आज कृपया वीकेंड असाइनमेंट सबमिट करा, जे पुढीलप्रमाणे आहेत. 1. पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 2 इंग्रजी व्याकरण. 2. इयत्ता 3 ते 5वी EVS 2. 3. इयत्ता 6वी ते 8वी हिंदी. 4. इयत्ता 9वी आणि 10वी विज्ञान 1 आणि 2. ब. तुमच्या वीकेंड असाइनमेंटचे सबमिशन खालीलप्रमाणे असतील. अ. पूर्व प्राथमिक सकाळी 10 ते सकाळी 10:30. ब. प्राथमिक दुपारी 2 ते दुपारी 2:30. क. इयत्ता 5वी ते 10वी सकाळी 10 ते सकाळी 10:30. तुमचे वीकेंड असाइनमेंट तुम्हाला नियुक्त करणारे तुमचे शिक्षक गुगल क्लासरूममध्ये एक फोल्डर बनवतील. शिक्षक त्यांच्या टाईम स्लॉटनुसार तुमची असाइनमेंट तपासतील. कृपया त्यांना तुमचे काम तपासण्याची विनंती करून संदेश पाठवणे टाळा. सूचना क्रमांक 3. आजपासून म्हणजेच 24 जानेवारी 2022 सोमवार इयत्ता 10वीची पहिली प्रिलियम परीक्षा सुरू होत आहे. इयत्ता 8वी आणि 9वी त्यांची दुसरी युनिट चाचणी परीक्षा सुरू करत आहेत. त्यांना चांगलं आरोग्य, चांगलं मन आणि चांगलं हृदय मिळावं यासाठी आम्ही आशीर्वाद देतो. इयत्ता 8वी ते 10वीच्या आमच्या लाडक्या विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. सूचना क्रमांक 4. 27 जानेवारी 2022 गुरुवारपासून श्रीमती जेनिफर पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रेड स्किपिंग करणारे विद्यार्थी त्यांची परीक्षा देखील लिहितील. तथापि, ही परीक्षा केवळ त्यांच्यासाठी आहे जे त्यांच्या दिनदैनी अभ्यासात चांगली सुधारणा दर्शवतात. सूचना क्रमांक 5. चांगली बातमी नाही, मला ग्रेट न्यूज म्हणून द्या. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यावरील भाषण या विषयावर ऑनलाईन भाषण स्पर्धा होती. सहभागीने 2 मिनिटे बोलणे अपेक्षित आहे. 21 जानेवारी 2022 शुक्रवारी रोजी आयोजित करण्यात आला होता. ही खुली श्रेणी होती, ज्याचा अर्थ असा की वयाची कोणतीही मर्यादा नव्हती. सर्व सहभागी 15 ते 35 वर्षे वयोगटातील होते. आम्हाला जाहीर करताना खूप अभिमान वाटतो की आमचे काही विद्यार्थी इयत्ता 10वी मधून स्पर्धेत सहभागी झाले होते. ते आहेत मिस दीप्ती लोणारे, मिस साक्षी कोल्हे, मिस हर्षदा जगदाळे. आम्हाला माहीत आहे की त्या दिवशी तुम्हाला आलेला अनुभव तुम्हाला आत्मविश्वास, ज्ञान आणि अन्वेषण करण्याच्या भावनेच्या नवीन स्तरावर घेऊन जाईल. प्रिय दीप्ती, प्रिय साक्षी, प्रिय हर्षदा, देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो. सूचना क्रमांक 6. प्रिय विद्यार्थ्यांनो, तुमचे काम सादर करा. ऑनलाईन वर्गांना उपस्थित राहा. हे सर्व आपल्यासाठी आवश्यक आहेत. जेव्हा तुम्हाला तंत्रज्ञानाद्वारे शिकण्याच्या या सर्व संधी दिल्या जातात, तेव्हा कृपया योग्यरित्या स्वीकारा. त्यासाठी नेहमी उपलब्ध राहा. तुम्हाला तुमची दिवसाची वेळ आणि वेळापत्रक माहीत आहे. तुमची इतर कोणत्याही हेतूसाठी व्यस्त होणार नाही याची खात्री करा. तुमचा वेळ प्रभावीपणे वापरा. सूचना क्रमांक 7. प्रिय विद्यार्थ्यांनो, कृपया लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्ही गुगल क्लासरूमसाठी तुमचा पासवर्ड सेव्ह केलेला तुमच्या दस्तऐवजात हरवतो, तेव्हा शाळा जबाबदार नाही. त्यासाठी तुम्ही जबाबदार आहात. कृपया लक्षात ठेवा की पासवर्डचे नुकसान आणि पुनर्निर्मितीसाठी दंड आकारला जाईल. सूचना क्रमांक 8. सावधगिरी बाळगा. मास्क घाला. हँड सॅनिटायझर वापरा. सामाजिक अंतर ठेवा. तुम्हाला सर्दी, नाक वाहणे, ताप, खोकला असल्यास इतरांपासून दूर राहा. धन्यवाद.